Jai Sri Swaminarayan, SSGM School CBSE runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 10, today we will continue our chapter number 2 in our English subject, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So in our previous video we discussed about this chapter about Nelson Mandela and about his life. We also discussed about the swearing ceremony, it means about the inauguration function and the speech of Nelson Mandela and where did it was held, यानी कि ये जो inauguration function था वो कहाँ रखा गया था, वो कहाँ हुआ था, एंड अबाउट द अपार्थाइड एक्ट, यानी कि ये जो अपार्थाइड एक्ट था, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ऑन बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द पीपल, वो क्या था, वो क्या है और वो कितने सालों तक चला, कब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया था. So in this video we are going to learn more paragraph and more about this chapter. So within this introduction, let us begin the reading and explanation of this chapter where we reached in our last video, that is page number 19 in our English textbook and the first paragraph. So student, please open your textbook and page number 19. So in our previous video, in our last paragraph of the last video, we learned about the swearing ceremony, that now we discuss about the speech of Nelson Mandela, that he told in his speech that now from today onward this beautiful land and its people, यानी कि ये जो beautiful land है साउथ अफ्रीका और उसके लोग क्या हो गए, फ्रीडम, यानी कि उनको फ्रीडम मिल गई है. दे आर फ्री फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड दे आर फ्री फ्रॉम द they are free from today onward. So let us begin. A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular era of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. So after a few moments, what happened, students? So after a few moments we all lifted our eyes in awe. Oh, it means, student, hear the word oh, it means in surprise, and spectacular era, it means an impressive display which is colorful and attractive. तो थोड़े मोमेंट के बाद क्या हुआ कि वी ऑल हैव लिफ्टेड अवर आईज इन ओ, यानी कि हमने सरप्राइज में एक अनइम्प्रेसिव डिस्प्ले को देखा. वो क्या था कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन अ परफेक्ट, इट मीन्स इन अ परफेक्ट एंड इन अ वन फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि हमने देखा कि जो ये अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर थे वो एक ही फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से पसार हुए, वहाँ से निकले और उन्होंने क्या किया, दे सैल्यूटेड द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द न्यू इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दैट डेमोक्रेसी. सो it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये जो here the word precision, it means accuracy, and demonstration, it means proof. तो ये जो पूरा एयर शो था, जो भी अफ्रीकन जेट्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के और जो ट्रूप कैरियर्स का, वो क्या था, वो कोई प्रेसिशन और शो ऑफ नहीं था. ये कोई शो ऑफ एक्यूरेसी या कोई शो ऑफ नहीं था कि हमारे पास इतनी ताकत है, कोई ताकत का दिखावा नहीं था, बट इट वॉज द प्रूफ ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज इट वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ये प्रूफ था किसका, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, यानी कि ये जो मिलिट्री फोर्स थी, पूरी डिफेंस सिस्टम थी, उसका ये क्या था, एक प्रूफ था किसका, लॉयल्टी का, उनकी
लॉयल्टी का, किसके लिए? टू द न्यू गवर्नमेंट, टू द न्यू डेमोक्रेटिक पावर, टू द न्यू सिस्टम दैट हैड बीन erected. Okay, so only moment before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला, ये सब जो भी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो क्या है? उनकी स्पीच है। किसमें? इनॉग्रेशन फंक्शन में वो अपने स्वेरिंग करे तब उन्होंने जो स्पीच दी थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? ओनली मोमेंट बिफोर, इट मीन्स बिफोर द एयर शो, क्या हुआ? द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी कि जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया एंड सल्यूट एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने क्या किया? प्लेज्ड, इट मीन्स वोड, यानी कि प्रॉमिस किया अपनी लॉयल्टी को। ठीक है, सो I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. So here he was remembering his past life experience, यानी कि वो अपने भूतकाल को याद कर रहे हैं और वो not unmindful. Here the word not unmindful, it means conscious of, aware of. उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज से पहले, बहुत साल पहले, जब ये फ्रीडम फाइट कर रहे थे, ये जो अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उससे बाहर आने के लिए वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, तभी ये जो सारे डिफेंस के जो भी हाईएस्ट जनरल्स हैं और जो पुलिस के जो बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे थे? उसको सैल्यूट नहीं किया था, लेकिन उनको अरेस्ट किया था। उनको क्या किया था? अरेस्ट किया था। So finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So यहाँ पर a chevron, it means a pattern in the shape of a V. तो जो भी अफ्रीकन जेट्स, इम्पेला जेट्स थे, वो किस फॉर्मेट में थे? वो जिगजैग शेवरन शेप में थे, जिगजैग इन शेप ऑफ वी, यानी कि इस तरह से। तो उस दिन जो ये इनॉग्रेशन फंक्शन था, उसमें जो भी इम्पेला जेट्स जो लॉयल्टी अपनी जो दिखा रहे थे, वो किस शेप में थे? वो थे ये जिगजैग फॉर्मेट में था। सारे इम्पेला जेट्स जिगजैग फॉर्मेट में थे और इसको नेल्सन मंडेला क्या टर्म देते हैं? क्या कहते हैं? शेवरन शेप। तो ये जो भी इम्पेला जेट्स थे जो शेवरन शेप में, वो क्या कर रहे थे? वो जो साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग था, जो डिफरेंट कलर का, उन कलर की क्या कर रहे थे? स्मोक लेफ्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका धुआं निकल रहे थे अलग अलग कलर का। सो दे लेफ्ट the smoke trail of the different colors of the new South African flag, that is black, red, green, blue and gold. So the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Koshi Shikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो वो डे क्या था? सिंबलाइज, यानी कि उनको ये दिन याद था बहुत। वाई? बिकॉज द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। तो कहीं भी कोई भी कंट्री में जब कोई नेशनल फंक्शन होता है तो उस देश की नेशनल एंथम प्ले की जाती है। तो उसी तरह से जब साउथ अफ्रीका में भी कोई नेशनल फंक्शन होता था तो वहाँ पर एक तरह की नहीं बल्कि दो तरह की नेशनल एंथम प्ले की जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो तरह के, दो कम्युनिटी के, दो कलर के लोग रहते थे। एक थे वाइट पीपल्स और दूसरे थे ब्लैक पीपल। तो जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता था तो उनकी जो अलग अलग कौन सी, तो वाइट पीपल की कौन सी थी? उनकी थी कोशी सिकेलाल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक पीपल थे उनकी नेशनल एंथम थी डाई स्टेम।
तो उनको प्ले किया जाता था। तो उसी तरह से जब ये इनॉग्रेशन फंक्शन था इन 1994 में, जब ये उन्होंने जो अपार्थाइड जो पूरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसमें से जब वो बाहर आए थे और ये जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, उस दिन भी ये दोनों ही तरह की जो नेशनल एंथम थी वो प्ले की गई थी। बट हुआ क्या था कि ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड soon known the words by heart. Here the word despite, it means had a very low opinion of, और हम ये भी कह सकते हैं कि dislike करना। तो पहले क्या था कि ये जो दोनों कम्युनिटी के लोग थे वो अपनी अलग अलग नेशनल एंथम प्ले करते थे जब भी कोई नेशनल फंक्शन था होता था तब, और उसके अलावा वो एक दूसरे की जो नेशनल एंथम थी यानी कि वाइट पीपल ब्लैक की और ब्लैक पीपल वाइट की क्या करते, उनको डिस्पाइज करते यानी कि डिसलाइक करते थे। उनकी नेशनल एंथम जब बजती थी तो उसको वो लाइक नहीं बल्कि उसको नज़रअंदाज करते थे, इग्नोर करते थे, उनकी नेशनल एंथम प्ले नहीं करते थे, गाते नहीं थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने दोनों कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे की नेशनल एंथम को गाया, प्ले किया, वेदर दे नो द वर्ड्स और नॉट, उनको उसके वर्ड्स लिरिक्स पता थे या नहीं पता थे, पर वो उन्होंने गाया बाय देयर हार्ट, यानी कि उसके उस दिन उन्होंने अपने दिल से उसको प्ले किया था। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. So on the day of that bright and happiest day, it means on the inauguration day, he was overwhelmed with a sense of past, यानी कि उनको अपने past की याद आ रही थी, with his life, with his struggle, with his people's struggle, their life. So he was overwhelmed with the past. And in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो क्या हुआ कि after a few decades of the 20th century, it means in the first decade of the 20th century, it means 1900 to 2000, and in the first decade of this century, it means 1900 to 1910, 1900 से लेकर 1910 तक की जो first decade थी 20th century, and a few years after the bitter Anglo-Boer and before my own birth, यानी कि जो फर्स्ट डिकेड में एक क्या हुआ था, वॉर हुआ था, किसके बीच में, एंग्लो एंड बोर, इट मीन्स बिटवीन इंग्लिशेस एंड अफ्रीकन्स और इंग्लिश के बीच एक वॉर हुआ था। और बिफोर माई ओवन बर्थ, इट मीन बिफोर द बर्थ ऑफ नेल्सन मंडेला, व्हाट हैपन, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own. यानी कि ये जो racial discrimination था on the basis of color, region, तो ये जो पूरा apartheid act था उसको क्या किया गया, established किया गया, उसको create किया गया था, किसके बेस पर, on the basis of the color and skin of the people. And the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman and society the world has ever known. So the social structure of this system of the apartheid act was one of the harshest, it means बहुत ही सख्त, brutal था, and most inhuman, it means अमानवीय था, or because society the world has ever known, it means that no one even believe and no one even think about it कि ये कितना brutal था, ये कितना बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है। So now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of the people regardless of the color of their skin. So in the last decade
of the 20th century. It means between 1990 to 2000, and in the 8th decade, it means in the 8th decade of नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला की खुद की 8वीं डिकेड। तो हम देखा जाए तो उस साल जब ये पूरा जो अपार्थाइड एक्ट खत्म हुआ, तब नेल्सन मंडेला की कितनी उम्र थी, उसकी एज कितनी थी? तो अगर हम उनकी बर्थ से देखें तो ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 एंड डायड ऑन 2013 इन 2013 में, 5 दिसंबर 2013 में वो मर गए थे। तो जब वो ये जो पूरा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म हुआ, तब उनकी एज कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 76 ईयर अकॉर्डिंग टू द Google, and so we can say that he was in his 8th decade when this apartheid act was overturned, and this system had been overturned in the last decade of the 20th century. It means this system was overturned in the year 1994, and please student, do not forget the date and the year, that is 10 May 1994, and which was replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples, यानी कि जो सब लोगों को अच्छी लगती थी, जो सबके राइट, जो सबके हक थे उसको मिलने लगे थे, वो सिस्टम इरेक्टेड हुई थी। that day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeated। यानी कि ये जो सब जो ये पूरी फ्रीडम मिली थी उनको, वो कैसे मिली थी? वो नेल्सन मंडेला के जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो बहुत सारे जो उनके कम्युनिटी के, उनके ग्रुप के जो कॉमरेड्स यानी कि उनके साथी थे, उनके सफरिंग के वजह से, और कई बार तो वो मर भी गए थे, उसकी वजह से ये पूरी जो फ्रीडम थी उनको मिली थी। जो कि नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि ऐसी सफरिंग, ऐसी जो देश भावना थी, वो दूसरे कहीं जगह पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So here he want to thank all those patriots. Patriots means a person who fights for his country. It means कि जो देश के प्रति, who loves his country, जो अपने देश को बहुत ज़्यादा चाहता है और उस देश के लिए अपनी जान तक दे देता है, उन पेट्रियोट्स को नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दे आर द सम ऑफ ऑल दोज पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर देम, हिम, यानी कि उनके पहले जो मर गए, ये अपार्थाइड एक्ट को निकालने के लिए जो स्ट्रगल हुआ था उसमें, उनको ये क्या कर रहे हैं? थैंक कर रहे हैं। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. Here the word wrought means done, achieved. तो ये जो उनको सफलता मिली थी, जो सक्सेस मिली थी अपार्थाइड एक्ट को निकालने में, तो उसके लिए उसको वो किस कारण से मिली थी, किसकी वजह से मिली थी? तो वो जो लोग जिसने सेक्रीफाइस की अपनी लीव्स, तो उसकी वजह से मिली थी। तो इधर नेल्सन मंडेला फील सैड, वो दुखी है और उनको पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी उन सभी लोगों को थैंक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पहले मर चुके हैं। तो वो उनके लिए क्या कर रहे हैं? फील सैड, वो सैड फील कर रहे हैं। और दूसरा वो और भी फील सैड, क्योंकि वो जो सारे लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो आज जी नहीं रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता है कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या अचीव किया, उनको क्या, उनके सेक्रीफाइस से पूरे साउथ अफ्रीका को क्या मिला है। सो स्टूडेंट, टुडे we stopped here and we discuss more about some of the new paragraph of this chapter in our next video. So till that, thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.